Dear student, myself Amit Patel. I welcome all of you in the subject Industrial Engineering 1. In this presentation, I will start from the Unit 1 Introduction. In Unit 1 of Introduction, topic to be covered: Introduction of Industrial Engineering, Scope of Industrial Engineering, Role of Industrial Engineering, Definition of Industrial Engineering, Productivity, affecting productivity, various way and techniques to increasing the productivity, and basic work content. Let's see one by one. Industrial engineering. There are two important words like industry and engineering. Industry means it is an organization or enterprise where the things are produced or they are distributed in the form of product and services. Yeah? तो जहाँ पे हम किसी रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते एक यूजेबल प्रोडक्ट हम बनाते हैं, तो उसको हम डिफाइन जनरल टर्म में डिफाइन करेंगे इंडस्ट्री. While engineering is the application of scientific techniques, different मेथड जो अवेलेबल है वो उसका यूज करेंगे. इकोनॉमिकल कॉस्ट जो है उसकी कम रखने की ट्राई करेंगे. सोशल, ओके, एंड प्रैक्टिकल नॉलेज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सम आउटपुट प्रोडक्ट. So this is engineering. So mainly two words, industry and engineering. That's why it defined as industrial engineering. Now, introduction of industrial engineering. There are three types of industry. First, primary industry, which use the natural resources for obtaining the goods. Your goods is output. Okay, so output प्राप्त करने के लिए ये यूज करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का. सेकंड, सेकेंडरी टाइप इंडस्ट्री, इट यूज द आउटपुट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री टू मेक द गुड्स. जो प्राइमरी इंडस्ट्री है उसका जो आउटपुट आएगा उसको फर्दर प्रोसेस करके अपना आउटपुट बनाएगी, तो वो हो गया सेकेंडरी इंडस्ट्री. और थर्ड, टर्शरी इंडस्ट्री, मेनली सर्विस सेक्टर. लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट, प्राइमरी इंडस्ट्री. Primary industry, natural resource for obtaining the goods. For example, crop using agriculture. एग्रीकल्चर सेक्टर में हम देखेंगे वीट यानी गेहूं, ज्वार और बाजरा, वो हो गए क्रॉप. क्रॉप जो है वीट, ज्वार और बाजरा को फर्दर प्रोसेस करके यानी उसका एक बीज बोते हैं तो उसमें से काफी सारी फसल पैदा करते हैं. ओके, तो ये एग्रीकल्चर के लिए हो गया वो आउटपुट. ओके, तो दिस इज प्राइमरी इंडस्ट्री यानी नेचुरल रिसोर्स का यूज करके हम एक आउटपुट लेते हैं. So these are the industry where the output is released through the use of natural resources. Yeah. Now next is second one, secondary industry. It use the output of primary industry to make the goods. Yeah. जो प्राइमरी इंडस्ट्री का जो आउटपुट है हमारे लिए, प्राइमरी इंडस्ट्री का आउटपुट क्या हो गया? फॉर एग्जांपल इन एग्रीकल्चर सेक्टर गेहूं, ज्वार और बाजरा, वो आउटपुट हो गया. उसको हम फर्दर प्रोसेस करेंगे और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे. फॉर एग्जांपल द ब्रेड प्रिपेयर्ड यूजिंग द व्हीट. गेहूं में से हम ब्रेड बना देते हैं, चपाती बनाते हैं, पराठा बनाते हैं. सो विच इज द आउटपुट ऑफ द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री. ओके, तो यानी जो गेहूं जो है वो प्राइमरी इंडस्ट्री का आउटपुट हो गया और यहाँ पे जो ब्रेड है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का आउटपुट हो गया. ओके, या रोटी भी ले सकते हैं, वो भी सेकेंडरी इंडस्ट्री टाइप. So in the secondary industry, we have the output in the form of various usable goods. Yani output which are produced from the output of primary industry. Third, tertiary industry, mainly service sector. For example, in the form of transportation like bus transportation facility, train transportation facility, from transfer from one state to another state or from one district to another district or from one country to another by using aeroplane. So it may be in the form of hospital providing medical facility or medical services. Okay, so in each type, whether it is primary, secondary or tertiary, in
these three type of industry they are is an output, right? और something वो कुछ ना कुछ हमको output देते हैं. Output either in the form of some product or in the form of services. Yeah. So mainly three types of industry: primary, secondary, and tertiary type of industry. Either they provide the goods or services. Clear? Now, scope of industrial engineering. Let's see कहाँ पे industrial engineering का scope है. So there are many industry and organization which produce the product of the similar type. Okay, मार्केट में देखेंगे काफी सारी प्रोडक्ट जो है उसकी कॉम्पिटिटर मार्केट में अपनी प्रोडक्ट निकाली. फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट को हम ले लेते हैं. क्लोजअप है, डाबर है, पेप्सोडेंट है. ओके, तो कितनी सारी मार्केट में टूथपेस्ट की ब्रांड अवेलेबल है. इस प्रकार से हम जींस पैंट की भी काफी सारे ब्रांड अवेलेबल, फॉर मोबाइल की भी काफी सारे अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल एप्पल है, सैमसंग है, एमआई. तो डिफरेंट टाइप की मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल, यानी सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल है. ये उसके सबके कस्टमर भी अलग है. अभी देखते हैं कि डिजायर क्वांटिटी में ये जो और इंडस्ट्री है या ऑर्गेनाइजेशन वो जो अपना आउटपुट मार्केट में रखती है, अगर वो डिजायर क्वांटिटी में मार्केट में रखती है, दूसरी है कि क्वालिटी भी उसकी मेंटेन करती है और कॉस्ट भी कम रखती है. ओके, ये तीनों जो पैरामीटर अगर ये मेंटेन करती है तो शायद कस्टमर और यूजर उसकी प्रोडक्ट लेने के लिए और उसकी प्रोडक्ट लेने चाहेंगे. और दूसरी चीज है कि ऑन टाइम पर वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल भी है. इफ दिस फोर पैरामीटर्स आर फुलफिल्ड बाय द इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन, in that condition or in that situation, customer user are satisfied. Okay? So if customer or user are satisfied in such situation, industry and organization able to survive in the market. Okay? कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो इंडस्ट्री फुलफिल करते बाय देयर क्वांटिटी, क्वालिटी, कॉस्ट और ऑन टाइम पे. तो कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड. इफ लिमिटेड क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो रहा है और क्वालिटी भी है, कॉस्ट भी उसकी हायर रखते हैं और ऑन टाइम पे अवेलेबल भी नहीं देते हैं, यानी मार्केट में अवेलेबल नहीं है. जब हम खरीदने जाते हैं वो प्रोडक्ट मार्केट में मिल ही नहीं रहा है. ड्यू टू दैट कस्टमर और यूजर आर अनसेटिस्फाइड. वो अगर ये पैरामीटर रहते हैं तो कस्टमर अनसेटिस्फाइड, यानी वो दूसरी जो सिमिलर प्रोडक्ट है उसको परचेस कर लेंगे. तो इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन अनेबल टू सर्वाइव इन दी मार्केट. तो हियर हम एक एग्जांपल लेते हैं. मार्केट में फॉर एग्जांपल मारुति और हुंडई की कार अवेलेबल है. जब हुंडई ने मार्केट इंडिया में लॉन्च किया तो तब उसके पहले उसने सर्वे किया, उसमें मारुति कौन कौन से फीचर्स और फैसिलिटी कस्टमर को देती है, तो उसने वो सर्वे किया. उसके बाद हुंडई ने सोचा कि इतनी फैसिलिटी तो हमको देनी ही पड़ेगी, तब जाके हम मार्केट में प्रोडक्ट अपनी शायद बेच सकते हैं. और उसके अंदर एडिशनल फीचर्स लाएंगे और कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कस्टमर क्या चाहते हैं, इंडियन पीपल जो है वो क्या चाहते हैं, तभी हम अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में रख सकते हैं. तो उसने वो सर्वे किया, वो सब इंफॉर्मेशन इकट्ठा की और उसके बाद अपनी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च की. उसी तरह से डिफरेंट जो कंपनी है, अगर उसको मार्केट में लॉन्च करना है अपनी प्रोडक्ट, तो उसको पहले अपना कॉम्पिटिटर जो है वो क्या कस्टमर को दे रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी और उससे किस तरह से बेहतर अपनी प्रोडक्ट वो मार्केट में कस्टमर को और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करेंगे, तब जाके वो प्रोडक्ट मार्केट को रख सकता है और बेच भी सकता है. ओके, सो हियर द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इज इन. सो दिस इज स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग. नाउ रोल ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग. इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एनालाइज द प्रोसीजर. फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट बन रही है, उसकी एग्जिस्टिंग प्रोसीजर कौन सी है उसके ऊपर फोकस करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे. उसमें से कहाँ पे टाइम रिड्यूस कर सकते हैं या वेस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, किस तरह से मेथड को हम इम्प्रूव कर सकते हैं.
ओके, तो ये फोकसिंग रहेगा। और जो हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम किस तरह से कर सकते हैं का फोकस रहेगा। किस तरह से करेंगे? बाय ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोसेस। ओके, अगर अल्टरनेटिव मेथड्स अवेलेबल है, कौन दूसरी कोई प्रोसेस अवेलेबल है, तो हम उसका यूटिलाइजेशन करेंगे, डेवलपिंग करेंगे, यानी अवेलेबल है और उसको हम यूज कर सकते हैं, तो वही मेथड से हम ट्राई करेंगे और उसको डेवलप करके, अगर डेवलप करते हैं और उसके बाद कुछ इम्प्रूवमेंट आता है, तभी जाके हम वो टेक्निक या मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। जो पुरानी जो मेथड वो या प्रोसेस और टेक्निक हम यूज करते हैं उसको रिमूव करके नई मेथड और टेक्नोलॉजी को हम रिप्लेस कर देंगे। थर्ड जो है इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ रिसोर्सेज। इंटीग्रेटेड सिस्टम मीन्स डिफरेंट यूनिट और डिफरेंट डिपार्टमेंट को के बीच तालमेल रहना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक मोटर का जो केसिंग है वो हम कास्टिंग से मैकेनिकल वाले बना के देते हैं, उसके अंदर जो सर्किट है वो सब बनाएंगे इलेक्ट्रिकल वाले। ओके, तो इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ रिसोर्सेज डिफरेंट डिपार्टमेंट और यूनिट के ऊपर हमको डिपेंडेंट रहना पड़ता है और उसके प्रॉपर ट्यूनिंग के बाद हम कुछ अच्छा प्रोडक्ट या आउटपुट हम दे सकते हैं। उसके बाद है मैन, मटेरियल, मशीन एंड मनी। इन इंडस्ट्री और एनी ऑर्गेनाइजेशन these four, man, material, machine and money, these four are the pillar of any organization or industry. If sufficient amount of manpower with skill, with sufficient amount of training provided to them, they will give better out. Material, for any industry and organization, material is consuming around 60% of cost. Okay, so material is important. If material अच्छा purchase करेंगे, then we fulfill the desired quantity and quality also. मशीन, हमारे पास पुरानी अगर मशीन है तो उसको हम चेंज करके नई मशीन परचेस करेंगे, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आउटपुट बढ़ा सकते हैं। okay? या एग्जिस्टिंग जो मशीन है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट ला सकते हैं कि नहीं, वो भी फोकस करना जरूरी है। ओके, तो मशीन है, उसके बाद है मनी। यहाँ पे मैन पावर है, मटेरियल है और मनी, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है फाइनेंस। तो फाइनेंस जो है यानी मनी रिक्वायरमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है एनर्जी। काफी सारी ऐसी इंडस्ट्री है और ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी कुछ बाय प्रोडक्ट है या वेस्ट है, उसका रिसाइकलिंग या रीयूज करके कुछ यूजेबल फॉर्म में से हम एनर्जी डेवलप कर सकते हैं। काफी सारे ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर जो स्टीम है, गैसेस जनरेट है, उसके यूज करके हम लोग कैप्टिव पावर प्लांट चलाते हैं। ओके, सो एनर्जी इज देयर। देन आफ्टर इंफॉर्मेशन, मार्केट में कंपटीशन है किसी प्रोडक्ट के भी, तो उसका इंफॉर्मेशन रखना जरूरी है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की। क्या यानी अगर कोई कंपनी है अपनी प्रोडक्ट अपने कंप्यूटर से ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए कुछ ना कुछ नए फीचर्स थोड़े टाइम में अपडेट करती रहेगी, जिसकी वजह से क्या है, कस्टमर जो है वो नई प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट होते रहेंगे। ठीक है, तो यानी कंपटीशन बनाए रखनी है तो हमको इंफॉर्मेशन निकाल के रखना पड़ता है कि कौन सी प्रोडक्ट मार्केट में आ रही है और क्या क्या फीचर्स वो दे रही है, उसके मुताबिक हमको भी अपनी प्रोडक्ट में कौन से चेंजेस करने हैं और उसकी प्रोडक्ट से हमारी प्रोडक्ट को बेहतर भी बनाना है। ये तो वो इंफॉर्मेशन या डेटाबेस हमको कलेक्ट करना है और उसके बाद आता है नॉलेज। तो जो डेटाबेस हमने कलेक्ट किया है वही डेटाबेस को हम अच्छे नॉलेज की मदद से बेहतर बना सकते हैं। अगर ये सब पैरामीटर हमने फुलफिल किए हैं एज अ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, देन द गोल इज सेटिस्फाई द कस्टमर और यूजर। ओके, और ये अगर सेटिस्फाई होते हैं तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी अच्छी रहेगी। ओके, और मार्केट में इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर सकते हैं। सो दिस इज द रोल ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट, definition of industrial engineering. So industrial engineering may be defined as art of utilization scientific principle, okay, different production technique like casting है, machining है, welding है, okay, psychological data, clear, information collect करते हैं,
for designing, improving and integrating industrial management and human operating procedure. So this is called as a definition of industrial engineering. Yeah. Now next term is productivity. As you can see, there is one farmer. Take example of productivity with related to agricultural sector. तो आपको प्रोडक्टिविटी क्या है वो समझ में आ जाएगा. तो फार्मर है, उसके पास कुछ लैंड है और उसी लैंड में वो काफी सारा उत्पादन लेना चाहता है. तो वो कांटेक्ट करता है फार्मर एडवाइजर को और उसको अपनी दिक्कत बताता है कि मेरे पास जो लैंड है उसमें से मैं इतना उत्पादन नहीं ले सकता, कुछ दिक्कतें आ रही है. तो क्या मैं मेरे पास जो अवेलेबल लैंड है उसमें उत्पादन में ज़्यादा ले सकता हूँ, यानी मुनाफा ज़्यादा कमा सकता हूँ. वो कहते हैं यस. किस तरह से वो करते हैं देखते हैं. फर्स्ट है मल्टीपल क्रॉपिंग. फर्स्ट जो मेथड है मल्टीपल क्रॉपिंग. इट इन्वॉल्व ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन द पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर. जो लैंड है उसके पास अवेलेबल, उसके अंदर वो मल्टीपल क्रॉप को का बीज बो के काफी उत्पादन ले सकता है. फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द रेनी सीजन, खरीफ सीजन यानी खरीफ पाक गुजरात में हम बोलते हैं खरीफ ऋतु. ड्यूरिंग दिस सीजन ज्वार और बाजरा दे विल ग्रो. वो 6 महीने के लिए रेनी सीजन में ज्वार और बाजरा बोएगी और उसका जो उत्पादन आएगा यानी 6 महीने के बाद अगर वो फसल पक जाती है उसको काट के उसके बाद वो विंटर सीजन में गेहूं को बो देंगे. ओके, अगले 6 महीने के लिए गेहूं का उत्पादन हो जाएगा. ओके, तो मल्टीपल क्रॉपिंग यानी एक ही लैंड में दो अलग अलग प्रकार की फसलें आफ्टर सीजन बाय सीजन वो चेंज करता है. जिससे क्या होगा कि फर्टिलाइजर जो खेत यानी जमीन जो है उसकी फर्टिलाइजर भी अच्छी रहेगी. दूसरी चीज़ है उसको जो मुनाफा होगा वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर वो ज्वार और बाजरा विंटर सीजन में भी वही डालेगा तो ये जो विंटर सीजन है वो इस पाक के लिए यानी ज्वार और बाजरा के लिए कंफर्टेबल है. अगर वही ज्वार और बाजरा वो विंटर सीजन में भी डालेगा तो दिक्कत कहाँ पे आएगी. वो अनअवेलेबल कंडीशन यानी वर्किंग एनवायरनमेंट जो वो सुटेबल नहीं है, तो उसके कारण वो पाक जो है उसके लिए उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी ज़्यादा पैसा भी लगाना पड़ेगा और एफर्ट भी ज़्यादा रहेगा. उसकी वजह से उसका मुनाफा कम होता रहेगा. तो यहाँ पे सीजन वाइज वो जो है अपनी खेत में फसल को चेंज करता रहेगा. तो दिस इज मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड. सेकंड वन मॉडर्न फार्मिंग मेथड. इट इन्वॉल्व हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स. मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक में फर्स्ट है हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, जिसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर बीज. इसमें गारंटी है कि पौधा जो बीज जो रोपेगी उसमें पौधा की ग्रोथ भी अच्छी होगी और फसल भी ज़्यादा एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स. ओके, उसका हम एग्जाम्पल नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे. सेकंड वन है इरिगेशन, यानी जहाँ पे पानी की दिक्कत है वहाँ पे हम डीप इरिगेशन टेक्निक से यानी टपक पद्धति से या शावर टेक्निक से हम पानी का जो अवेलेबल रिसोर्स यानी पानी जितना अवेलेबल है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके पौधों को हम उगाएंगे. इरिगेशन. देन आफ्टर केमिकल फर्टिलाइजर, जहाँ अगर हम एक ही प्रकार का पौधे यानी फसल लेते हैं उसके कारण जो लैंड में जो काफ़ी ऐसे केमिकल कंपोजिशन है उसकी मात्रा कम हो जाती है. उसको मेंटेन करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर हम लैंड में डालते हैं, जिसकी वजह से फसल अच्छी आती है और ग्रोथ ज़्यादा बढ़ने से मुनाफा भी बढ़ता है. पेस्टिसाइड, काफ़ी जगह पे ऐसी दिक्कत भी आती है कि कई कबार जो फसल है उसमें कुछ रोग लग जाते हैं, यानी पौधे पीले पड़ जाते हैं, पन्ने पीले पड़ जाते हैं. उसका फ्रूट जब आता है उसके बाद सफिशिएंट यानी जो ग्रोथ होता है उतना हो नहीं पाता है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती. तो वो दिक्कतें ना आए उसके लिए पेस्टिसाइड्स को भी डालना पड़ता है. ओके, तो टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड. So this is two techniques, multiple cropping
and modern farming method. These two techniques are majority involved to increase the production of farmer in the same land. दिस इज ट्रेडिशनल सीड एज यू कैन सी। ये मेरे खेत का मैंने एक फोटो है, यहाँ पे मैंने ट्रेडिशनल सीड डाला हुआ है और एक दूसरा जो खेत है उसमें उसी टाइम पे हम लोगों ने डाला था हाई यील्डिंग वेराइटी सीड यानी टिश्यू कल्चर। यहाँ पे ट्रेडिशनल जो सीड्स है उसकी जो कॉस्ट है एक बीज की जो तो फॉर कंसिडर करते हैं 1 रुपी, और यहाँ पे जो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स यानी टिश्यू कल्चर की जो बीज हमने बोया उसकी जो प्राइस है 3 रुपीज। अब आप काफी मंथ के बाद हम देख सकते हो इमेज में कि ग्रोथ जो है और यहाँ पे जो ग्रोथ है वो अलग है, यानी वही लैंड है लेकिन यहाँ पे फसल का जो उत्पादन आता है और यहाँ पे जो फसल का उत्पादन है सेम वाटर, सेम पेस्टिसाइड, सेम केमिकल फर्टिलाइजर और इरिगेशन टेक्निक हम यूज करते हैं, लेकिन ये जो डिफरेंस दोनों इमेज में आ जाता है, यानी द हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड produce much greater amount of grain on a single plant than the traditional varieties. Okay, as a result, larger quantity of goods. As a result, larger quantity of food grain can be produced from the same piece of land. Okay, यानी उत्पादन ज्यादा आएगा तो मुनाफा भी ज्यादा आएगा और मुनाफा ज्यादा आएगा तो प्रोडक्शन जो बढ़ेगा उसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी while using same land. So productivity can be increased in various field like tailoring. जितना उसके पास ग्रोथ है उसमें से डिफरेंट डिजाइन या एडवांस टेलरिंग टेक्निक से वो बढ़ा सकता है। मशीनिस्ट फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन से वो रिडक्शन रेट या रीवर्क टाइम जो वो रिड्यूस कर सकता है। बैंकिंग सेक्टर, रेलवे, पोर्ट सेक्टर एक्सेट्रा, तो डिफरेंट एरियाज है जहाँ पे हम कौन सी मेथड और किस तरह से हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं वो हमको पहले एनालाइज करना पड़ता है, उसके बाद उसमें चेंज यानी इम्प्रूवमेंट लाना पड़ता है और इम्प्लीमेंट करना है। अगर सक्सेसफुली कुछ डिफरेंस हमको दिख रहा है तब कर सकते। तो द प्रोडक्टिविटी इन द प्रोडक्शन determine the earning or profitability, efficiency and performance of the industry. Higher the productivity of the industry, the greater chance of earning capacity, okay? And more number of possible outcome with the minimum resource utilization. Okay? तो हम कम से कम रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करके मैक्सिमम प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं। The definition of productivity is defined as a ratio between output and input. जितना हमने आउटपुट लिया है उसके लिए कितना इनपुट लगा, रेशियो को हम प्रोडक्टिविटी डिफाइन कर सकते हैं। आउटपुट मीन्स द अमाउंट प्रोड्यूस और द नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस, एंड इनपुट आर द वेरियस रिसोर्स एम्प्लॉय। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग, हमारे पास जमीन है उसमें हम घर बनाते हैं और वही जमीन पे हम एक बहुमाड़ी बिल्डिंग बनाते हैं। तो ये सारे फैमिली है वो अकोमोडेट हो सकते हैं। क्लियर। आफ्टर इक्विपमेंट एंड मशीनरी, फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल वर्नियर कैलिपर से मेजर करते हैं और डिजिटल से मेजर करते हैं। तो डिजिटल में जैसे ही मेजर करेंगे एक वैल्यू आ जाते हैं, ओके, और ट्रेडिशनल में करेंगे तो आपको डिस्काउंट काउंट करके मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन करके आपको एक वैल्यू मिलेगी, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मशीनरी जो ट्रेडिशनल मशीन है उसकी जगह पे हम सीएनसी मशीन में प्रोडक्शन करेंगे तो टाइम भी कम रहेगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। देन आफ्टर मटेरियल, स्मार्ट मटेरियल और प्रोसेस किया हुआ मटेरियल को हम यूज़ करेंगे तो भी प्रोडक्शन बढ़ेगा। देन आफ्टर लेबर, ओके, मैन पावर को अच्छी ट्रेनिंग देंगे, उसको अच्छी तरह से स्किल डेवलप करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो यानी these are the factor affecting the productivity. Next is according to the Peter Drucker productivity. Peter Drucker is one of the industry engineer. उसने productivity को define किया है। Productivity means a balance between all factors
जितने भी फैक्टर्स है उसके अंतर्गत उसकी बैलेंस जरूरी है ऑफ प्रोडक्शन दैट विल गिव द मैक्सिमम आउटपुट विथ द स्मॉलेस्ट एफर्ट। यानी जो इनपुट हमको देना है वो काफी कम रखना है और वही छोटे से एफर्ट यानी इनपुट से हमको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन निकालना है एज पर पीटर ड्रकर। नाउ कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन क्या है वो तो आपको मालूम है और प्रोडक्टिविटी मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। तो प्रोडक्शन एंड दिस इज प्रोडक्टिविटी। So first, it related with the conversion of input into desired output. Okay, raw material to finished product में convert करेंगे. While productivity, how efficiently resource are utilized for achieving the desired outcome. हमारे पास जितने भी resources है उसका maximum utilization करके हम एक product बनाएंगे. कॉल है productivity. इट इंक्लूड नंबर ऑफ प्रोसेस एलिमेंट। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए काफी सारी प्रोसेस या मेथड इन्वॉल्व रहती है। फॉर एग्जांपल कास्टिंग अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल मशीनिंग अवेलेबल है, बिल्डिंग अवेलेबल है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस भी करनी पड़ती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस आर इन्वॉल्व टू मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट इन द प्रोडक्शन सिस्टम। while in productivity it is performance measure element। यानी परफॉर्मेंस मीन्स वी आर मेजर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। कितना उत्पादन आया, कितना परसेंटेज यानी कितना एवरेज देती है कार लाइक एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस। ओके, यहाँ पे प्रोडक्शन में एक शिफ्ट में कितना उत्पादन हुआ था वो हम मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल 300 कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो ये वो हो गई क्वांटिटी। While in productivity, the ratio of output to the input. Okay? Ratio of output to the input. It is absolute term like quantity or number of product produced, while it is relative term because it relates with input parameters and output of. It means value of output. Okay? Yani number of pieces, number of quantity, while this is efficiency factor of production. Okay? So these are the comparison between the production and productivity. Now I will summarize this presentation. In this presentation I talk about the different type of industry, then after what is industrial engineering, then after the scope of industrial engineering, then after the role of industrial engineering, productivity, and lastly I discuss about the production and productivity comparison. Okay? Thank you for your attention.